Hello friends, this is Nutan. Welcome to our Mavericks channel. The last हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं ग्रुप्स एंड कोडिंग थ्योरी के। तो फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर्स, सेकंड चैप्टर था ग्रुप्स। इसमें से सब पॉइंट्स क्लियर किए हैं हमने, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी दिए हैं हमने। तो आज इस वीडियो में मैं थर्ड यूनिट यानी कि फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेंथी चैप्टर्स हैं। वन बाय वन पॉइंट्स में आपको इस क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले देखते हैं फाइनाइट ग्रुप एंड सब ग्रुप्स क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो पीपीटी में, तो फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, तो उसका डेफिनेशन देखो। फर्स्ट फाइनाइट ग्रुप का, तो ग्रुप G star is said to be finite if the set is G is finite. Finite that means limited. And next क्या है, a group G star is said to be infinite if the set G is infinite. Infinite that means unlimited. तो ये हुआ फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। तो फर्स्ट उसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, उसका ऑर्डर कैसे डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इफ G star is a finite group, then number of elements in G is called the order of the groups and it is written as O of G. तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ऑर्डर कैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें देखो, सपोज ऑर्डर ऑफ Z6 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6। सपोज G में 2 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। तो इससे ऐसे ऑर्डर डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। Let G be the group and A belongs to G if there exists at least positive integer m such that A raised to m is E, then m is called order of A and it is written as order of A. Let G be the group and A belongs to G if there exists at least positive integer m such that A raised to m is equals to E. Then m is called order of A and it is written as order of A. And if no such positive integers, then A is said to be the infinite orders. तो उसके ऊपर एक थ्योरम है, वो थ्योरम हम पहले देखते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम, if G is a finite group with order of G which is equals to n and A belongs to G, then there exists a positive integer m such that A raised to m is equals to E and m which is less than or equals to n. तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो, if G is a finite group with order of G is n and A belongs to G, then there exists a positive integer m such that A raised to m is E and m is less than or equals to m. तो ये हमें प्रूफ करना है, A raised to m is E. तो सपोज कंसिडर, सपोज एक लिस्ट कंसिडर करते हैं। कंसिडर लिस्ट A raised to 1, A raised to 2, A raised to 3 up to A raised to n plus 1. Then by closure property, all these elements are in M.
all these elements are in G groups. Suppose we have a raised to p which is equals to a raised to q. So p which is less than q which is less than or equals to n plus 1. That means q is lies between p to n plus 1. So our m which is equals to q minus p. So m is equals to q minus p which is less than or equals to n. So a raised to m which is equals to क्या होगा a raised to q minus p. So a raised to m which is equals to a raised to q star a raised to so a raised to minus p. So a raised to q star a raised to p and here minus 1 है therefore which is raised to minus 1 and a raised to q star यहाँ पे देखो a raised to p क्या है हमारा a raised to q which is inverse. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a raised to q it's minus 1. That means a raised to m which is equals to e with m is less than or equals to n. ये हुआ हमारा प्रूफ. तो देखो थ्योरम में क्या दिया था हमें if G is the finite group with order of G is n and A belongs to G then there exists a positive integer m such that a raised to m is e and m is less than or equals to n. So first हमने क्या किया कंसिडर किया था हमने a raised to 1 a raised to 2 a raised to 3 up to a raised to n plus 1 ये हमारी एक लिस्ट हमने कंसिडर किए हैं. So we have a raised to p equal to a raised to q. Then our m is equals to q minus p. तो a raised to m raised to के फॉर्मूले में हमने लिखा. So a raised to m is equals to a raised to q minus p. यहाँ पे हमने सिर्फ स्प्लिट किया है इसको. स्प्लिट करके हमने ये a raised to q और a raised to q inverse is e and therefore our a raised to m is equals to e. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है. So next हमने डेफिनेशन क्या देखी थी. That means order of an element. Let G be the group and A belongs to G if there exist at least positive integers m such that a raised to m is e then m is called order of A and which is written as order of O of A. So इसके ऊपर एक एग्जाम्पल थ्योरम है. तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम थ्योरम नंबर 2. ये थ्योरम्स एग्जाम में पूछते हैं. थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन यानी कि प्रूफ आना चाहिए. Let G be a group and A belongs to G. Then first part proof करना है हमें a raised to n is e if and only if order of A divides n. And second proof करना है हमें order of A which is equals to order of A inverse. तो प्रूफ में देखो फर्स्ट हमें क्या करना है. तो ये जो प्रूफ है यहाँ पे देखो क्या है. G is the group and a raised to n is e if and only if order of A is divides n. And second one proof है order of A is equals to order of A inverse. So first we have to write given things. क्या है given a raised to n is e. Let order of A which is equals to m. ये जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है order of A which is equals to m since m is a least positive integer with a raised to m is equals to e. जो हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में ये जो डेफिनेशन देखा है उसमें देखा है हमने a raised to m which is equals to e
and a raised to n which is equals to also e. That means given here. So we have condition m is less than or equals to n. Then therefore applying division algorithm, then division algorithm क्या है हमारा, n is equals to mq plus r, where r is lies between 0 to m. So if r is not equals to 0, consider r is not equals to 0, then r is equals to n minus mq. So यहाँ पे देखो a raised to r is equals to a raised to n minus mq. So ये हमें स्प्लिट करना है, a raised to n, a raised to m which is raised to minus q, then a raised to n, तो ये a raised to n क्या है, e, और a raised to m भी क्या है, e. So इसका आंसर आया e. E is the identity, and that means a raised to r which is equals to e with r is less than n. And suppose r is equals to, if r is equals to 0 कंसिडर किया तो n is equals to क्या आएगा, m क्यों आएगा, तो m डिवाइड्स n आ जाएगा, तो m डिवाइड्स n आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n आ जाएगा. ओके, अभी कॉन्वर्स प्रूफ करना है. कॉन्वर्सली सपोज ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n है, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इंटू k. k इज सम फॉर पॉजिटिव इंटीजर. ओके, देन a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k आ जाएगा. तो देन a रेज टू ऑर्डर ऑफ a, दैट मीन्स e रेज टू k आ जाएगा. देन a रेज टू n इज इक्वल्स टू e आ जाएगा. a raised to n is equals to e if order of a divides n. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ. सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, a raised to order of a is equals to order of a inverse. तो ये हमें प्रूफ करना है. सेकेंड, ऑर्डर ऑफ a which is equals to order of a inverse. तो यहाँ पे देखो, लेट जो गिवन है वो लिखना है हमें. ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m दिया है, देन a रेज टू m इज इक्वल्स टू e दिया है. देन कंसिडर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, दैट मीन्स ऑर्डर नहीं, सिर्फ a इनवर्स. यहाँ पे देखो a इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a दैट मीन्स a इनवर्स रेज टू m which is equals to a inverse up to m times आ जाएगा. That means a star m times raised to inverse. That means a raised to m inverse आ जाएगा. a raised to m क्या है हमारा, e inverse, that means our e आ जाएगा. That means order of a inverse is finite. That is order of a inverse which is less than or equals to order of a. Order of a. Applying a inverse both sides. Applying a inverse. So a inverse of inverse which is equals to a. Using a inverse of inverse which is equals to a. Then applying a inverse क्या आ जाएगा, order of a
which is equals to order of A inverse, which is inverse, which is less than or equals to order of A inverse आ जाएगा. That means order of A which is less than or equals to order of A inverse आ जाएगा. From 1 and 2. From 1 and 2, order of A inverse which is equals to order of A. तो यहाँ पे देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या हमें दिया है, a raised to n is equals to e if and only if order of a is divides n. So फर्स्ट तो जो डेफिनेशन है उसमें तो दिया है a raised to m is e और order of a is equals to m एंड गिवन हमें एग्जांपल में दिया है a raised to n is equals to e. तो ये सब यूज करके हम सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन. सो फर्स्ट हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे. डिवीजन एल्गोरिदम क्या है तो मैंने आपको बताया है. डिवीजन एल्गोरिदम n इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर. तो इसमें सपोज r जीरो और r नॉट जीरो दोनों यूज करके हमें प्रूफ करना है. तो पहले हमने r इज नॉट इक्वल्स टू जीरो करके प्रूफ किया है. तो यहाँ पे देखो r इज इक्वल्स टू r इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू n माइनस एम क्यू आ जाएगा. ए रेस टू r इज इक्वल्स टू ए रेस टू दिस. इसको हमने सिर्फ स्प्लिट किया है और a raised to r is equals to e आएगा. Then suppose if r is equals to 0, then n is equals to m cube, m divides n. That means m means order of a divides n. Suppose order of a is equals to n है, तो n is equals to order of a into k is some positive integer. Then a raised to n is a raised to order of a into k, order of a, that means a raised to order of a, that means values 1 e raised to k आ जाएगा. That means a raised to n is equals to e. सेकेंड हमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स प्रूफ करना है. तो हमें दिया है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम ए रेस टू एम इज ई. तो ए इनवर्स एम इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एम टाइम्स ए, दैट मीन्स इनवर्स ए रेस टू एम बाय इनवर्स ई. तो ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज विच इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए आ जाएगा. अप्लाइंग ए इनवर्स, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स. And that means from 1 and 2 order of A inverse is equals to order of A. तो ये हुआ हमारा थ्योरम 2. तो ये दो थ्योरम है एग्जाम में पूछते हैं. अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल्स देखते हैं. तो लेट सी द वन बाय वन एग्जांपल्स. So example number first, let G is equals to a square up to a raised to n minus 1, where a raised to n is equals to e. We define star as for a raised to I, a raised to j, which is belongs to g, 0 less than or equals to I, and j is less than n. Then a raised to I star a raised to j, which is equals to I plus j, and a raised to I plus j minus n. यहाँ पे देखो if I plus j which is less than n, and if I plus j which is greater than n, then G is an abelian group. ये हमें प्रूफ करना है of order n. तो देखो वन बाय वन प्रूफ करते हैं. सॉल्यूशन, let G is equals to a square up to a raised to n plus 1, where a raised to n is equals to e. So given a raised to I star a raised to j is equals to a raised to I plus j, where I plus j is less than n, and a raised to I plus j minus n, where I plus j is greater than or equals to n, then G is abelian group. ये हमें प्रूफ करना है. तो फर्स्ट स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन on G. This is our definition. तो सेकेंड एसोसिएटिव प्रूफ करना है हमें.
तो एसोसिएटिव में देखो, for a raised to I, a raised to j, a raised to k, which is belongs to G, then we have a raised to I star a raised to j star a raised to k. तो यहाँ पे देखो ये स्टार है, इसका वैल्यू क्या है, a raised to I plus j स्टार a raised to k. तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a raised to I plus j प्लस k आ जाएगा. अगर इसको हमने स्प्लिट किया, अगर a रेज टू i प्लस j प्लस k, यानी कि a रेज टू i स्टार a रेज टू j प्लस k, यानी कि a रेज टू i स्टार a रेज टू j स्टार a रेज टू k. तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि स्टार इज एसोसिएटिव. तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई. अभी थर्ड देखो, थर्ड क्या है, आइडेंटिटी. तो E is equals to 0. E is equals to A raised to 0. Next, fourth, for any, suppose A raised to I which is belongs to G, then I which is lies between 1 to n. Then we have A raised to J also belongs to G. Then here J, A raised to J which is belongs to G, then 1 which is less than J की वैल्यू क्या आएगी, n minus I. Then J is equals to n minus 1 is also lies between 1 to n, such that A raised to I star A raised to J which is equals to A raised to I star A raised to J. J की वैल्यू क्या है here, n minus I. तो अगर इसको हमने स्प्लिट किया, तो A raised to n क्या है हमारा, E. And this shows that G is a group. Therefore, last one देखो, commutativity. A raised to I star A raised to J which is equals to I plus J which is equals to J plus I which is equals to J star I. That means commutativity proof. And hence G is abelian group. तो अबेलियन ग्रुप को हमें प्रूफ करना है, इसलिए हमने ये सब प्रॉपर्टीज वन बाय वन प्रूफ किया है. तो उसमें फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, सेकंड इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज द आइडेंटिटी, फोर्थ वन इज द इनवर्स एंड लास्ट वन इज द कम्यूटेटिव. अगर कम्यूटेटिव प्रूफ होता है तो ये अबेलियन ग्रुप रहता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2. Let G be a group and AB belongs to G. Then show that first order of A which is equals to order of B inverse star A star B and B order of A star B which is equals to order of B star E. तो अभी सॉल्यूशन में देखो, तो लेट G is the group, AB belongs to G, then show that. ये दोनों हमें प्रूफ करना है. फर्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B इनवर्स स्टार A स्टार B. तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं, जो फर्स्ट वाला है, ऑर्डर ऑफ A विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B इनवर्स स्टार A स्टार B. So we have A
B which is belongs to G. Then B inverse star A star B which is raised to n equals to B inverse star A raised to n star B और n which is belongs to n. तो इसको स्प्लिट करके ये आया. देन ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूफ करना है. वी प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट पार्ट में n इज इक्वल्स टू 1 लिखते हैं. देयरफॉर b स्टार a स्टार b n की जगह पे 1 लिखते हैं. b इनवर्स स्टार a रेज टू 1 स्टार b and therefore result is true for n is equals to 1. Now assume that n is equals to k. Now assume n is equals to k. That is b inverse star a star b raised to k which is equals to b inverse star ak star b which is also true. Now n is equals to k plus 1. So b inverse star a star b raised to k plus 1 which is equals to b inverse star a star b raised to k into plus 1 के लिए b inverse star a star b. तो यहाँ पे देखो b इनवर्स स्टार a रेज टू k स्टार b इंटू b इनवर्स स्टार a स्टार b. अभी यहाँ पे देखो b इनवर्स स्टार a रेज टू k ये एक ब्रैकेट में डालते हैं स्टार b इनवर्स तो a स्टार b तो इसकी वैल्यू e आ जाएगी. a स्टार b. तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आ जाएगा b इनवर्स तो a रेज टू k और a आ जाएगा a रेज टू k प्लस 1 और ये b बिकॉज a की वैल्यू 1 है एंड देयरफॉर रिजल्ट is true for n is equals to k plus 1. So ये प्रूफ हुआ हमारा. Now if order of a is equals to m, that means a raised to m which is equals to e. So b inverse star a star b which is raised to m which is equals to क्या आ जाएगा b inverse स्टार a रेज टू m स्टार b. तो a रेज टू m इज क्या है e. सो b इनवर्स स्टार e स्टार b. सो b इनवर्स b क्या आ जाएगा e. तो e स्टार e that means our value is e and therefore order of b inverse star a star b which is less than or equals to m which is equals to order of a. तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं कहेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन नंबर इसको बोलेंगे यहाँ पे जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया था ये इसको इक्वेशन नंबर 1. तो ये इक्वेशन नंबर 2 है. नाउ a जो a है हमारा तो इसको हम कैसे अज्यूम करेंगे. तो b स्टार b इनवर्स स्टार a इसको
प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी स्टार बी इनवर्स से, ताकि इसमें ए को कोई असर नहीं पड़ेगा। सो बी स्टार, ये बी स्टार ए स्टार बी एक ब्रैकेट में डालेंगे और ये बी इनवर्स एक ब्रैकेट में। तो ये और ये इसका वैल्यू ई आ जाएगा। देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी। तो ये इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। नाउ जो सेकंड पार्ट है, सेकंड को क्या प्रूफ करना है हमें, ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए, दैट मीन्स कम्यूटेटिव, ये हमें प्रूफ करना है। सो ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए विच इज इक्वल्स टू, सो बी स्टार ए को बी इनवर्स स्टार बी स्टार ए स्टार बी, ताकि इसका वैल्यू 1 आता है। सो ऑर्डर ऑफ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। सो सेकेंड पार्ट, ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए, इसको हम कम्यूटेटिव बोलेंगे। सो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो इसको हमने प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स और बी से मल्टीप्लाई किया, ताकि इसका आंसर आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, लेट G be a group and AB belongs to G, then show that a order of A is equals to order of B inverse star A star B, and second proof करना था हमें order of A star B equals to order of B star A। So first part में देखा था हमने order of A is equals to order of B inverse star A star B, so AB belongs to G। तो यहाँ पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से ये हमने प्रूफ किया है। सो बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए रेज टू एन स्टार बी, वेयर एन इज बिलोंग्स टू एन, एंड वी प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, तो 1 हमने पहले कंसिडर किया, उसके बाद में k को कंसिडर किया, उसके बाद में k+1 को कंसिडर करके ये हमने प्रूफ किया है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। सो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m, देन a रेज टू m इज इक्वल्स टू e। सो b इनवर्स स्टार a स्टार b रेज टू m, दैट मीन्स b इनवर्स स्टार a रेज टू m स्टार b। सो a रेज टू m, तो हमें मालूम है a रेज टू m की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है e। सो b इनवर्स b की वैल्यू भी अल्सो e है, तो e स्टार e आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। तो सेकंड कम्यूटेटिव के लिए ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए था। सो ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए में बी इनवर्स से और बी से हमने मल्टीप्लाई किया। सो बी इनवर्स बी तो हमारा ई होता है, तो इसलिए बी स्टार इक्वल्स टू ए स्टार बी। तो ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ AB square which is equals to A square B square for every AB belongs to G। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, A और B which is belongs to G and G is abelian। So AB square
विच इज इक्वल्स टू ए बी इसको हमने स्प्लिट किया है। तो यहाँ पे देखो बी ए एक ब्रैकेट में, ये जो बी है और ये एक ब्रैकेट में डालते हैं बाय एसोसिएटिविटी। सो यहाँ पे देखो ए बी ए को ए बी और बी कम्यूटेटिव, तो ए ए बी बी यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कम्यूटेटिव बोलेंगे। And thus G is abelian. That means AB square which is equals to A square B square. अभी इसका कॉन्वर्स प्रूफ करते हैं हम। कॉन्वर्सली AB belongs to G, so AB square which is equals to A square B square. So AB square के लिए हम लिखते हैं AB और AB A square B square. तो A B A square B square. अभी यहाँ पे देखो इसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स और बी इनवर्स रिस्पेक्टिवली। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स। सो यहाँ पे देखो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी इनवर्स। यहाँ पे भी देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देखो ए इनवर्स, इसमें से एक ए निकालते हैं, यहाँ पे ए बी लिखते हैं, इसमें से एक बी यहाँ पे, और ये जो इसका वैल्यू है इसका वैल्यू है ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी कि बी ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड हेंस जी इज अबेलियन। ये कम्यूटेटिव प्रूफ हुआ, इसलिए जी इज अबेलियन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, if G is a group or every AB belongs to G, then AB raised to n which is equals to A raised to n B raised to n for three consecutive integers n, then show that G is abelian group। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमें दिया है ए बी रेज टू एन विच इज इक्वल्स टू ए रेज टू एन बी रेज टू एन। थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि ए बी रेज टू एन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए रेज टू एन प्लस वन बी रेज टू एन प्लस वन। और थर्ड इंटीजर्स ए बी रेज टू एन प्लस टू ए रेज टू एन प्लस टू बी रेज टू एन प्लस टू, ताकि ये हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव दिया है इसलिए हमने थ्री कॉन्जिक्यूटिव इसे लिखे हैं। सो इसको वन बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं और इसको थ्री बोलते हैं। देन फ्रॉम टू फ्रॉम नंबर इक्वेशन टू we have
a raised to n plus 1 b raised to n plus 1 which is equals to ab raised to n plus 1. तो ab raised to n plus 1 यानी कि ab raised to n into ab. सो ab raised to n की वैल्यू है हमारे पास, ab raised to n की वैल्यू है a raised to n b raised to n into ab. So a raised to n ab raised to n b which is equals to a raised to n b raised to n a into b. So by associative we are multiplying. So ab raised to n by cancellation law ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ab raised to n which is equals to b raised to n by cancellation law. ये हुआ proof. Similarly from equation number 2 and 3 ab raised to n plus 1 which is equals to b raised to n plus 1 into a. ये हमारा प्रूफ आ जाए. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे. देन फ्रॉम 5 we have b raised to n plus 1 into a which is equals to ab raised to n plus 1. So ab raised to n into b. So ये ऐसे लिखा तो भी चलेगा, b raised to n into a into b. So b raised to n ba is equals to b raised to n ab. So ये b raised to n कैंसिल हो जाएगा, तो ba is equals to ab आ जाएंगे. For every ab belongs to G and ba is equals to ab and therefore G is abelian. तो ये हुआ हमारा लास्ट एग्जांपल. एक बार मैं फिर से बताती हूँ ये लास्ट वाला एग्जांपल. तो यहाँ पे क्या दिया है, G is a group, AB belongs to G and AB raised to n is equals to A raised to n, B raised to n for 3 consecutive integers and show that G is abelian group. तो 3 consecutive integers पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, AB raised to n, A raised to n and B raised to n, then n plus 1, n plus 2, ये तो consecutive हुआ. अभी सेकेंड इक्वेशन से हम प्रूफ करते हैं. देखो A raised to n plus 1, B raised to n plus 1 is equals to AB raised to n plus 1. तो इसको हमने स्प्लिट किया और कैंसिलेशन लॉ से हमने AB raised to n, B raised to n ये प्रूफ किया. सो बाय सेकेंड इक्वेशन ये हमें मिला है. देन बाय थर्ड इक्वेशन ये हमें मिल जाएगा n plus 1 की टर्म. तो ये ऐसे हम प्रूफ करके 3 consecutive integers मिल सकते हैं. देन फ्रॉम 5 दिस इक्वेशंस b raised to n a is equals to a into b raised to n plus 1. तो इसको हमने ये स्प्लिट किया है b raised to n into b, इसको एक्सचेंज किया बाय कॉन्जिक्यूटिव कम्यूटेटिव से b raised to n into ab. So b raised to n ba is equals to b raised to n ab. So b raised to n कैंसिल किया तो ba is equals to ab आ जाएगा. दैट मींस g is abelian group. तो इसमें टोटल हमने 2 थ्योरम्स देखे हैं और टोटल 4 एग्जांपल्स देखे हैं थ्योरम्स के डिफरेंस. एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरम्स भी पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरम्स एग्जांपल्स बताए हैं. तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ. अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.
थैंक यू।